ڈیو نیوز آر میں میں ہوں رابعہ مرزا۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ کورونا کے وار برقرار، مزید 118 افراد جان سے گئے، ہلاکتیں 17,000 سے بڑھ گئیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5,611 نئے کورونا مریضوں کا اضافہ، مختلف علاقوں میں SOPs کی خلاف ورزی جاری۔ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے لاہور کے 15 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن 7 مئی تک نافذ رہے گا۔ علامہ اقبال ٹاؤن، عزیز بھٹی، داتا گنج بخش، گلبرگ ٹاؤن اور لاہور کینٹ میں مارکیٹیں، شاپنگ مالز، ریسٹورنٹس اور سرکاری اور نجی دفاتر بند رہیں گے۔ عوامی داخلے پر بھی پابندی۔ خیبر پختونخوا میں کورونا نے ایک اور ڈاکٹر کی جان لے لی۔ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی پشاور کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ صوبے میں کورونا سے جاں بحق ہونے والے ڈاکٹرز کی تعداد 64 ہو گئی۔ سندھ میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافے کے بعد صوبائی حکومت متحرک۔ سندھ حکومت نے بھی پاک فوج کی خدمات کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت سول انتظامیہ کی مدد کے لیے پاک فوج کی خدمات درکار ہیں۔ عمران خان مہنگائی پر قابو نہ پانے کی ذمہ داری لیں اور گھر جائیں۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم عمران خان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں دنیا بھر کے حکمران عوام کے فائدے سوچتے ہیں، خان صاحب چندہ لینے کی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ بلاول بھٹو کورونا کی آڑ میں سیاسی تنقید نہ کریں۔ جو ویکسین سندھ کو دی وہ تو اب تک استعمال نہیں ہوئی۔ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کہتی ہیں صوبے میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 11% ہے۔ SOPs کی سختی سے پابندی کروائی جا رہی ہے۔ اگر لوگ احتیاط نہیں کریں گے تو پھر مکمل لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ ماضی کے حکمرانوں کے منافقانہ رویے دور دراز علاقوں کی محرومیوں کا باعث بنے۔ فردوس عاشقوان کہتی ہیں پنجاب کے پسماندہ علاقوں کو ان کا چھینا گیا حق دے کر بزدار حکومت حقیقی خدمت کے سفر پر گامزن ہے۔ PTI کی سیاست امید کا استعارہ ہے۔ عمران خان کی قیادت میں نیا پاکستان بن کر رہے گا۔ فواد چودھری کہتے ہیں عام پاکستانیوں کی بدولت آج تحریک انصاف اقتدار میں ہے، تبدیلی لا کر رہیں گے۔ اور کورونا سے بگڑتی صورتحال، ایران نے پاکستان اور بھارت پر سفری پابندیاں عائد کر دیں۔ پابندی کا فیصلہ ایران کی وزارت صحت کی تجویز پر کیا گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت میں پائے جانے والا کورونا وائرس برطانیہ میں پھیلے وائرس سے مختلف ہے۔ اس سے ایران کے لیے سنگین خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ کورونا کے وار برقرار، مزید 118 افراد جان سے گئے، ہلاکتیں 17,000 سے بڑھ گئیں۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5,611 نئے کورونا مریضوں کا اضافہ ہوا۔ مثبت کیسز کی شرح 10.17% ریکارڈ کی گئی۔ ملک بھر میں 55,128 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 1,15,38,771 کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کورونا سے متاثرہ 4,826 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ ملک میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 88,698 ہو گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں کورونا نے ایک اور ڈاکٹر کی جان لے لی، جس کے بعد صوبے میں اس وبا سے جاں بحق ہونے والے ڈاکٹرز کی تعداد 64 ہو گئی۔ نصیر ٹیچنگ اسپتال پشاور کے شعبہ نفسیات میں تعینات اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی چند روز قبل کورونا کا شکار ہوئے تھے۔ مرض کی تشخیص کے بعد وہ پشاور ہی کے ایک نجی اسپتال میں زیر علاج تھے اور گزشتہ رات حالت تشویشناک ہونے پر جانبر نہ ہو سکے۔
सूबे में कोरोना से जहां बहक तिब्बी अमले की मजमूई तादाद 97 हो गई है, जिनमें 64 डॉक्टर्स, 15 पैरामेडिक्स, 6 नर्सें और 13 क्लास 4 मुलाजमीन शामिल हैं। पीटीआई की सियासत उम्मीद का इस्तारा है। इमरान खान की क़यादत में नया पाकिस्तान बनकर रहेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान की जिद्दोजहद एक ऐसे समाज के लिए है जहां ताकतवर और कमज़ोर पर कानून का नफाज यकसा हो। ये तहरीक अभी जारी है। तहरीक इंसाफ के 25वें यौम तासीस के मौके पर फवाद चौधरी ने कहा है कि आज का दिन तहरीक इंसाफ के हर कारकुन, वर्कर और सपोर्टर के लिए काबिल फ़ख्र है। गुज़िश्ता 25 बरस इमरान खान की क़यादत में मुसलसल जिद्दोजहद और लगन का इस्तारा है। आम पाकिस्तानी की काविशों के बायस आज तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में है। माजी के हुक्मरानों के मुनाफिकाना रवैये दूर दराज इलाकों की महरूमियों का बायस बने। फिरदौस आशिकवान ने कहा है कि पंजाब के पसमानदा इलाकों को उनके छीना गया हक देकर बुज़दार हुकूमत हकीकी खिदमात के सफ़र पर गामजन है। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान कहती हैं, उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान के पसमानदा इलाकों की तरक्की और खुशहाली के लिए अरबों रुपए का तारीखी पैकेज दिया। तौसा में 3 सड़कों की तामीर, 2 रेस्क्यू सेंटर्स, स्पोर्ट्स जिम्नेजियम और पनाहगाह का इफ्तिताह कर दिया गया। वजीर आला ने तौसा सोशल सिक्योरिटी अस्पताल, 4 सड़कों की तामीर और रेस्ट हाउस का संगे बुनियाद रखा। तौसा यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, लाइव स्टॉक फार्म, सड़कें, पुल, 3 लंगर खानों का क़याम अमल में लाया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए 15 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन 7 मई तक नाफिज रहेगा। अल्लामा इकबाल टाउन, अजीज़ भट्टी, दाता गंज बख्श, गुलबर्ग टाउन और लाहौर कैंट में मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे। शहरियों के इन इलाकों में दाखिले पर भी पाबंदी होगी। समाजी और मजहबी तकरीबात का इनकाद भी ममनू होगा। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर से हलाकतें जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मज़ीद 118 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि मुल्क भर में हलाकतों की तादाद 17,117 हो गई है। सिंध में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे के बाद सूबाई हुकूमत मुतहरिक हो गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध हुकूमत ने भी कोरोना के फैलाव में इजाफे के बायस पाक फ़ौज की खिदमात के लिए वजारत दाखिला को ख़त लिख दिया। सिंध हुकूमत की जानिब से भेजे गए ख़त में कहा गया है कि सूबे में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए आइन के आर्टिकल 245 के तहत सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए पाक फ़ौज की खिदमात दरकार हैं। फ़ौजियों की तैनाती और साजो सामान से मुतल्लिक मुशावरत के बाद आगाह किया जाएगा। बिलावल भुट्टो कोरोना की आड़ में सियासी तनकीद ना करें। जो वैक्सीन सिंध को दी गई थी वो तो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि सूबे में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 11% है। SOPs की सख्ती से पाबंदी करवाई जा रही है। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि कमर्शियल सरगर्मियां शाम 6 बजे के बाद बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग बंद होगी। इमरजेंसी ऑपरेशन के अलावा दीगर सर्जरीज पर पाबंदी लगा दी गई है। लाहौर में 15 और रावलपिंडी के 10 मकामात पर लॉकडाउन कर दिया गया है। 8% से ज़्यादा शरह वाले तमाम अजला में पाबंदियां लगाने लगे हैं। अगर लोग एहतियात नहीं करेंगे तो फिर मुकम्मल लॉकडाउन कर सकते हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं इमरान खान महंगाई पर काबू ना पाने की जिम्मेदारी लें और घर जाएं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना था कि दुनिया भर के हुक्मरान अपने अवाम के फ़ायदे सोचते हैं और इमरान खान चंदा लेने की नई तरकीबों पर गौर करते हैं। IMF के हुक्म पर टैक्सों का बोझ लादने वाले सिलेक्टेड वजीर आजम के जराइम को अवाम कभी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ठंडे कमरे में बैठकर इमरान खान को उन वालिदैन की तकलीफ़ का कोई एहसास नहीं जो बच्चों के स्कूल की फ़ीस तक अदा नहीं कर पा रहे। तब्दीली ये है कि सरमायादार दोस्तों को टैक्सों में छूट देकर आम आदमी को महंगाई के शिकंजे में कस दिया जाए। कोरोना से बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र ईरान ने पाकिस्तान और भारत पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। ईरानी हुक्मरान के मुताबिक पाकिस्तान और भारत से परवाज़ें आने और जाने पर पाबंदी होगी। पाबंदी का फैसला ईरान की वजारत सेहत की तजवीज़ पे किया गया है। वजारत ख़ारजा का कहना था कि भारत में पाए जाने वाला कोरोना वायरस बरतानिया में फैले वायरस से मुख्तलिफ है और इससे ईरान के लिए संगीन खतरात पैदा हो सकते हैं। गेमिक माउस बनाने वाली मारूफ कंपनी ने हीरे जड़ा माउस ट्विच के स्ट्रैमर को तोहफे में दे दिया। माउस की कीमत $1 लाख पाकिस्तानी 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद है। ये माउस स्टार लाइट सीरीज़ का नया आने वाला माउस है जिसे स्ट्रैमर को तोहफे में देने के लिए खसूसी तौर पर हीरो से सजाया गया। स्ट्रैमर ने हीरो से सजे माउस को अपना फर्स्ट पीस ऑफ ज्वेलरी करार दे दिया और कहा इसे रोज़ रात को तिजोरी में लॉक करेंगे ताकि चोरी होने से बचाया जा सके। स्ट्रैमर का कहना है कि स्टार लाइट 12 सीरीज के माउस वायरलेस और वायर वाले माउस से ज़्यादा तेज़ रफ्तार है जिसे सबसे हल्की धात मैग्नीशियम अलॉय से बनाया गया है। वैसे तो डॉल्फिन हमेशा मुस्कुराती रहती है लेकिन उनमें मनफी जज्बात भी पाए जाते हैं। मगरबी ऑस्ट्रेलिया में शार्क ले के मकाम पर साइंसदानों ने तजुर्बात के बाद कहा है कि समुद्री ममालिया भी आपस में बुग़्ज़ और अदावत रखते हैं। साइंसदानों ने नोट किया है कि होटल नोज डॉल्फिन के नर अपनी साथियों की पुकार पर तवज्जो देते हैं जो माजी में इन्हें बचाने या मदद के लिए आए हों, जबकि मदद ना करने वाले डॉल्फिन गिरोह की पुकार पर कान नहीं धरते और नज़रअंदाज कर देते हैं। डिव न्यूज़ के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए divtv.tv।